All right, so good evening, guys. How many participants we have in today's lecture? Okay, we'll wait a couple of minutes, let others join as well. And लेट मी सी, आप लोगों ने बुकलेट में डाउट्स डाल दिए हैं क्या? गूगल शीट. How is the difficulty level, guys? मतलब as in this time जो homework आप लोगों को मिला था, that is something जिसमें काफी सारे numerical questions हैं. So how is your problem solving experience? थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है. हाँ, FBS के क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड हैं इसमें, जो मैंने होमवर्क दिया था आपको उसमें. एंड स्टार्टिंग में इसमें थोड़ी मेहनत करनी ज़रूरी है, बिकॉज until unless you get that comfort, okay. ठीक है, सो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो ज़्यादा कुछ था नहीं इन वीडियो लेक्चर 3. इट वाज प्राइमरीली नर्स इक्वेशन एंड उसका एप्लीकेशंस. तो नर्स इक्वेशन क्या होती है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा, थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव करा जा रहा है. एंड हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग इट, हाउ टू अप्लाई इट, उसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है. सो दैट इज समथिंग विच आई वुड वांट टू डिस्कस अपफ्रंट. एंड आप नोटिस करना आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे, आगे का जो FBO के या FBS के डाउट्स आप लोग मेरे साथ डिस्कस करोगे, तो उसमें आई विल बी using a lot of these in a lot of questions I will be using the same methodology. Okay, so step 1, in fact let me quickly write it down, that this is the problem solving method that we'll be using. So step 1 would be identify and write the cell reaction. Okay, write half reactions and full cell reaction. Sometimes this might be given to you, sometimes you might have to kind of figure out by yourself. Then एक बार सेल का रिएक्शन आपके सामने आ जाएगा तो आप उससे N and Q as in the reaction quotient, ये आप इजीली निकाल लोगे. Then after this, जब N और Q आपने निकाल लिया तो उसके बाद आप E0 सेल के ऊपर फोकस करना, which will be SRP cathode minus SRP anode. Now this is something which you will find is many times directly mentioned. Sometimes it is something that requires indirect calculation. So here directly or indirectly, दोनों तरीके से मिल सकता है. एंड स्टेप 4 में, ठीक है, स्टेप 4 में you will be applying the nurse equation. ठीक है, E cell is equal to E naught
minus RT by NF ln K. Oh, sorry, ln Q, not K, ln Q. So इसमें से something will be given, something will be asked, and accordingly you will have to solve for it. So ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी रहेगी हमारे नर्स इक्वेशन के क्वेश्चंस में, जो कि हम लोग देखेंगे. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम इट I have a doubt coming from Sanjay that he has some conceptual doubt from the second lecture. So you want to ask, go ahead, पूछ लो. This thing, you got a relation between delta G and this thing, equilibrium constant in the second lecture. But then delta G is zero for the equilibrium, like when the reaction is in equilibrium. So how do you get the relation? So how do we what? The relation. I mean, delta G is zero for during equilibrium. हाँ. So how did you get the relation between delta G and equilibrium constant? No. Okay. Delta G is equal to, wait. See, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको ये चीज लिखवाया था, डेल्टा G is equal to डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Q. ठीक है. At equilibrium, delta G is 0 and Q is K. So what you get is 0 is equal to delta G naught plus RT ln K. Right? So ln K, or you can say minus RT ln K, is what is equal to delta G naught. यहाँ से आप K निकाल के लेके आते हो. ठीक है. And this delta G naught is equal to minus NF E naught. This delta G is equal to minus NF E. ठीक है. E is the cell potential under standard, sorry, E naught is the cell potential under standard state, whereas E is the cell potential under any general case, general condition. ठीक है. Okay, sir. Yeah, thank you. Okay. So अच्छा, second lecture के ऊपर ना, let me just quickly ask some questions to you guys and let me know how do you fare. So okay, let me do this thing. Give me 1 second. I will just stop the screen share for some time because I want to do a small Q&A. So just want to check second lecture के basis पे आपकी understanding कैसी है. So give me 1 minute. I'll just bring the questions. मैं उनके एक बार answers delete कर देता हूँ and then we'll discuss. सर कुछ दिख नहीं रहा. हाँ, 1 मिनट रुक जाओ. मैं बस वो questions का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ. ओके.
लाइक क्योंकि मतलब बेस्ड ऑन सम ऑफ द डाउट्स विच स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग अलग से ऐसे व्हाट्सएप पर, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक बार लेट मी जस्ट चेक विद other students also in the batch, how are they faring in terms of understanding the electrochemical series. ठीक है now. Okay. अरे क्रैश हो गया. ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर बेस्ड कुछ डाउट्स है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. तो if you remember the electrochemical series and certain important aspects about it, तो पहला क्वेश्चन है कि कोई भी दो हाफ सेल्स मैं आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स और उनके एसआरपी वैल्यूज दिए हुए हैं. तो अगर मैं कोई से भी दो आपस में कनेक्ट करूंगा तो इनफैक्ट चलो पहला क्वेश्चन तो मेरा ऐसा है कि इनमें कुछ एसआरपी पॉजिटिव है और कुछ एसआरपी नेगेटिव है. सो ऐसा क्यों है? कैन एनीवन गिव मी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? Repeat. The relational value. So some in this table in the reactivity series, my first question is that some SRP values are positive while some are negative. There are relation. They Yeah, are relative values. calculated compared to age. Compared to राइट. सो किनका पॉजिटिव रहता है और किनका नेगेटिव रहता है? The positive ones are actually the The ones strong like oxidizing agents and the oxidizing negative agents. ones are the ones who are strong reducing agents. Yes. Okay. The ones which are strong reducing agents, they have negative SRP Yes, sir. yes, sir. Compared to hydrogen. compared to hydrogen. Okay, ठीक है, good. अच्छा, now as a next question, if I ask you कि वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उनमें मैं कोई भी दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में कनेक्ट करता हूँ तो हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं which one will act as anode and which one will act as cathode? Answer. The one where oxidation takes place is the anode, and one where reduction takes place is the cathode. Depends on the electrode potential. हाँ, so how do I decide? जैसे for example मैंने जिंक और जिंक 2+ एंड Ag और Ag+ का कनेक्ट कर दिया है आपस में. ठीक है, so इनमें which is going to act as anode and which is going to act as cathode? So the one with negative lower SRP will act as SRP anode. The one with lower SRP will act as one with lower SRP will act as anode, and one with higher SRP will act as cathode. हाँ, एकदम सही. So this is something which you should be able to answer in one go itself. ठीक है, confusion नहीं होना चाहिए. अब आपको थोड़ा बहुत relative order भी ध्यान रहेगा. तो Ag और Ag+ का SRP ज्यादा होता है तो ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा एंड Zn2+ एनोड की तरह एक्ट करेगा. राइट, दिस इज अ स्टेटमेंट व्हाट नित्या जस्ट सेड. SRP जिसका कम होगा विद साइन दे एक्ट एज एनोड एंड विद साइन जिसका SRP ज्यादा है दैट एक्ट्स एज कैथोड. कॉपर कॉपर 2+ और Ag+ में कौन सा एनोड कौन सा कैथोड? Sir, copper anode and silver cathode. सही जवाब. नेक्स्ट I2 एंड Cl2 में एनोड कैथोड क्या होगा? Sir, I2 cathode or Cl2. Sir, Cl2. Cl. I2 anode. I2 anode and Cl2 cathode. I2 हाँ, एक बार में करेक्ट होना चाहिए. देखो I2 anode, Cl2 cathode. हाँ, वो एक हाँ, बार में sure. करेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको. जो मार्क कर दिया फिर मार्क कर दिया ऑप्शन. ओके, इन दोनों में लेड और एल्यूमिनियम. Aluminium anode and lead cathode. ठीक है, ठीक, गुड. ओके, देन
केमिकल एक्टिविटी के बारे में भी डिस्कशन किया गया था। अच्छा, मेटल्स में किसकी केमिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है? ठीक है, दिस इज समथिंग गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल्स। ठीक है, so they act as reducing agent, they itself undergo oxidation, and accepting electrons is something of a tendency shown by non-metals. So if I ask you from the point of view of the reactivity series, right, तो नीचे के जो metals हैं वो ज़्यादा active होते हैं कि ऊपर के metals? नीचे के मेटल ज्यादा एक्टिव होते राइट, इसको नीचे के। टेक्निकली, हाँ टेक्निकली हम लोग कैसे बोलेंगे? लेसर एसआरपी। ठीक है, lesser SRP, stronger reducing agent, so they are more active. Metals के केस में ऐसा होगा, नॉन मेटल्स के केस में कैसा होगा? Higher SRP. Higher SRP will be more active. ठीक है, ये नॉन मेटल्स के केस में था। एंड बेसिस दैट हम लोगों ने ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट देखा था दैट द मोर एक्टिव स्पीशीज कैन डिस्प्लेस द लेस एक्टिव स्पीशीज के आयंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। राइट, सो यहाँ पर किस केस में रिएक्शन होगा मेटल्स के केस में? The first वाला। First. फर्स्ट वाले में रिएक्शन होगा, यस, बिकॉज कॉपर इज मोर एक्टिव, इट विल डिस्प्लेस सिल्वर। सेकंड वाले के केस में नहीं होगा सर, Zn is नहीं more. होगा So सर। non-spontaneous. राइट, देन यहाँ पे बताओ। So first one में The होगा। first वाले में होगा। फर्स्ट वाले में होगा बिकॉज फ्लोरीन इज अ मोर एक्टिव नॉन मेटल, इट विल डिस्प्लेस क्लोरीन। सेकंड वाले में नहीं होगा। ठीक है, ऑल राइट, गुड। सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच नाउ आई सर सी। आप पहले ये वाला पार्ट पहले मतलब वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो जब ये क्या आपने कौन सा वाला पार्ट? वो अभी जो अपने कर रहे थे ना वो, ये वाला हाँ ये वाला, हाँ वापस समझाओ ना। एक्टिव मेटल वाला। हाँ सर, मतलब हाँ हाँ। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है ना, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही हैं। मतलब आप ये रिएक्टिविटी सीरीज जो देखोगे इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों ही हैं। तो मेटल्स की टेंडेंसी के बारे में बात करूंगा तो मेटल्स की टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की। ऑक्सीडाइज होने की मतलब इलेक्ट्रॉन देने की। तो उस केस में जिनका एसआरपी ज़्यादा है, ठीक है, इनफैक्ट ज़्यादा नेगेटिव है, जिनका एसआरपी ज़्यादा नेगेटिव है, दे आर मोर एक्टिव मेटल्स। ठीक है, एंड अ मोर एक्टिव मेटल से जैसे मैग्नीशियम इज अ मोर एक्टिव मेटल, इट कैन डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव मेटल से Sn2+ मेटल का आयन फ्रॉम इट सोल्यूशन। ठीक है, पर उल्टा नहीं होगा। आप Sn मेटल से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो Mg के आयंस को डिस्प्लेस कर दे, क्योंकि Sn इज लेस एक्टिव। ये समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यही चीज फिर नॉन मेटल्स में भी मैंने बताई। नॉन मेटल में कैसा है? नॉन मेटल में जिनका एसआरपी ज्यादा है, ठीक है, वो ज्यादा एक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, मोर एसआरपी implies more active नॉन मेटल। तो इस केस में फ्लोरीन, आप नोटिस करोगे, ये एग्जांपल देखना है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड ये आयोडीन। तो इनमें फ्लोरीन ज़्यादा एक्टिव नॉन मेटल है। तो जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन का या ब्रोमीन का या आयोडीन के आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, बट उल्टा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाँ सर समझ गया। समझ गए ना? ठीक। So I have a conceptual doubt in this हाँ बोलो। topic. Sir. So you told us that the E of a cell is the sum of the SRP of a cathode and the SOP of the anode, right?
So can we use the delta G formula and arrive at the same thing? Like delta G cell is In the fact, delta G of each half cell. that's how you do it. मतलब that is actually the correct way. वो स्टार्टिंग में जो मैंने बोला था ना आपको, that was something which I said because उस टाइम पर मैंने डेल्टा जी नॉट इंट्रोड्यूस नहीं करा था. तो actually the correct way of derivation is via delta G naught. So both ways are valid, right? Yeah. Okay, thank you, sir. ठीक है. So coming back to now the discussion that we had, this is the नर्स इक्वेशन वाला पार्ट. इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हमें यूज करनी है एंड इसके बेसिस पे हम लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करना है. सो लेट्स सी हाउ वी प्रोसीड विद दिस. एफबीओ के डाउट्स पिक करके स्टार्ट करते हैं. नाउ एफबीओ में द क्वेश्चंस वर फ्रॉम 34 टू 50. तो पहला डाउट आपका 37th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है. नाउ लेट मी come to 37th question. इसमें आपसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कराया जा रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन का. ठीक है. इनफैक्ट दोनों को साथ में सॉल्व कर देता हूँ मैं. 37 एंड 38 में जो गलती हो रही है आपसे वो आई थिंक हो रही है एन के कैलकुलेशन में. ठीक है. एन फॉर फुल सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, कोई बताएगा? It will be the number of electrons you cut while you're writing both the reactions. The balance करके. Right. So that is what the mistakes some of the student are making. ये हाफ सेल रिएक्शंस हैं. ठीक है. SRP जिसका कम था उसको मैंने एनोड बना दिया, जिसका ज्यादा था उसको मैंने कैथोड बना दिया. अब जब आप इनको ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए ना. तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे. ठीक है. दैट इज व्हाट इज गोइंग टू गिव यू द सेल इक्वेशन. ठीक है. So this is what is now going to yield 2Cr solid plus 3SN2 plus aqueous is going to give you 2Cr3 plus aqueous plus 3SN solid. This is your cell ka reaction. N is 6. ठीक है. 6 electrons are getting cancelled from either side. And Q का expression is chromium 3 plus का square and SN2 plus का cube. ठीक है. वैसे अगर आप मुझसे पूछो तो टेक्निकली एक्चुअली 34th में ठीक है. 34th में बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने के बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि अगर रिएक्शन की स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज हो जाता है. बट क्योंकि 34th क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शंस डाल के पूछ लिया है कि कौन सा बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का ही डेल्टा जी नॉट एंड के आपको मेंशन करना है. ठीक है. तो एनीवेज यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एन. तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉन के इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट. ठीक है. तो ये अब आपको वैल्यूज मिली हुई हैं जिसके बेसिस पर आप ई नॉट सेल क्या हो जाएगा 0.74 माइनस 0.14 0.6. ये किसी को फाइट तो नहीं है ना. ई नॉट सेल कैसे निकाला मैंने? ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड यूज करके. तो ये ऐसा माइनस 0.14 माइनस 0.74 वहां से ये ई नॉट आ रहा है. तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो इससे आपको डेल्टा जी नॉट भी मिल जाएगा और के भी मिल जाएगा. ठीक है. देन 39th
39 गड़बड़ क्वेश्चन है, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं होता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ में, ठीक है। feasible reaction implies delta G less than 0 or you can say E greater than 0. No criteria for K. Equilibrium constant 1 हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। There is no criteria. That's an incorrect question. Then 40th, अरे ये 40th वाला तो क्लास नोट्स में भी होगा ना ऐसा ही। इनफैक्ट चलो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। दिस इज रादर लेक्चर 2 के ऊपर बेस्ड। इसमें पहला इक्वेशन है, इसमें वही थर्मोकेमिस्ट्री टाइप करना है, इक्वेशन को जोड़ तोड़ करके शो करना है। सो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस से इनफैक्ट Fe2 प्लस बन रहा है। तो अगर मैं बोलूँगा इसका E01 आपको दिया हुआ है और इसका अगर मैं n पूछूंगा आपसे तो 1 रहेगा, ठीक है। देन देयर इज अ सेकंड इक्वेशन which is Fe2 plus 2 electrons is giving Fe। इसका भी E0 आपको दिया गया है, राइट, एंड इसका n भी 2 है। Then there is a third equation that is being asked, which is Fe3 plus 3 electron giving Fe। E03 आपसे पूछा है, इसका N3 will be 3 electrons only, right? Now भेजा है क्या? अब नोटिस करना, as you can see that the third equation is forming by adding 1 and 2, तो बस delta G03 is equal to delta G01 plus delta G02 minus N3 Fe03 is equal to minus N1 minus N1 Fe01 and minus N2 Fe02. Just substitute the data and solve for it. ठीक है? It's quite easy. Yes, sir. All right. Now next question देखते हैं। लोगों ने पूछा है 40th क्वेश्चन भी, अच्छा नहीं 40th तो मैंने कर ही दिया, 43rd। अब जैसा मैंने आपको बताया इन क्वेश्चंस में 43rd 44th, ठीक है, 46th 43 44 46 और कौन सा है 45 और 47 तो एक्चुअली सेम है, 49, ठीक है। देन 50 में भी वही लगेगा, 50 के बाद में 57 में भी वही लगेगा, ठीक है। 58 एंड 60, 58 एंड 60, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा अलग करके बता देता हूँ। इन सब में एटलीस्ट ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करे इनमें सब में सेम मेथोडोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करना, सबसे पहले मैं 43 करके बता देता हूँ, चलो, ठीक है। एंड आगे के आप ही लोग मेरे साथ में डिस्कस करके मुझे बताओगे। सो रिएक्शन दिया हुआ है इसमें स्टेप 1, तो इसमें रिएक्शन तो दे ही दिया है, आपको खुद से मेहनत नहीं करनी पड़ी। Cu2 plus aqueous plus 2 Cl minus aqueous plus 2 Ag solid is giving Cu solid plus 2 AgCl solid, ठीक है। अब स्टेप 2
इसमें n का वैल्यू कितना होगा, कोई मुझे बताएगा? थ्री सर। 3 कैसे आया 3? टू होगा। टू। 2 sir. 2 इज द करेक्ट आंसर। अब नोटिस करना, काफी स्टूडेंट्स यहीं पे अटक रहे हैं। आप कॉपर को +2 से 0 पे लेके जा रहे हो ना, और एक ही एटम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये ले रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं, नोटिस करो। क्लोरीन -1 से, सॉरी क्लोरीन क्या बोल रहा हूँ, सॉरी सिल्वर 0 से +1 जा रहा है, और 2 एटम्स हैं जो कि सिल्वर के जा रहे हैं, राइट। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर दे रहा है, तो these are the electrons that are cancelling out in this reaction. ठीक है, that's how you get n का value as 2. now इसके बाद में स्टेप 3 पर आप आ जाओगे, तो आपको E0 तो दिया हुआ है, आपको तो E0 के लिए भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही इस क्वेश्चन में, सीधे सीधे 0.12 वोल्ट दिया हुआ है। बस आपको स्टेप 4 लगाना है और आपको E का वैल्यू निकालना है। E will be equal to E0 minus 0.059 by 2 into log Q। ठीक है, तो आप बस डेटा डालते जाओ। Q का भी एक्सप्रेशन मैंने आपके लिए ऊपर लिख ही दिया, एंड उसमें आप नोटिस करोगे तो कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एंड Cl- का भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व कर लो, E का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 44th क्वेश्चन में बताओ मुझे, रिएक्शन वापस से दी हुई है, दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। 3Ag plus NO3 minus aqueous plus 4H plus aqueous is giving 3Ag plus aqueous plus NO gas plus 2H2O liquid। स्टेप 2 पे मेहनत करना शुरू होगी। n का वैल्यू कितना रहेगा, थ्री सर। थ्री। राइट, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यों भी ढंग से लिखना। तो ये भी कहाँ से समझ में आया, 3 आप नोटिस करोगे ना, सिल्वर 0 से +1 जा रहा है और 3 उसके एटम्स जा रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स कौन गेन कर रहा है, नाइट्रोजन। नोटिस करना +5 से +2 जा रहा है, सो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन गेन कर रहा है, तो these are the 3 electrons that are getting exchanged or cancelled out in this reaction. That is how you are getting the value of n as 3. Okay, अब स्टेप 3 आप नोटिस करोगे तो E0 के लिए थोड़ी सी मेहनत कराई जा रही है। सर वो जो NO का प्रेशर है, हाँ, वो ATM में है, मतलब नॉर्मल अगर ATM में रहेगा तो उसको लेने का मतलब प्रेशर मतलब ऐसे ही ले लेने का उसको। हाँ नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट यहाँ पे डाला है। इनफैक्ट लेट मी हाईलाइट इट ओवर हेयर फॉर एवरीवन्स बेनिफिट, बिकॉज आगे भी ये क्वेश्चंस में आएगा, और ये हमेशा इसी यूनिट्स में डालना है। पुट P इन बार एंड पुट कॉन्सेंट्रेशन इन मोलार या मोल पर लीटर। बस यही 2 यूनिट्स एक्सेप्टेबल है और कोई सी भी यूनिट इसमें नहीं चलेगी। अगर प्रेशर mmHg में दिया हुआ है, टॉर में दिया हुआ है, तो सबको बार में कन्वर्ट करो और डालो, अदरवाइज और कोई सी भी यूनिट नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है।
सर एटीएम और बार तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं ना। हाँ, तो उसके लिए आपको फिर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना बारीकी में कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट एटीएम और बार को बराबर बराबर मान के कर सकते हो। सर हम यहाँ पे प्रेशर को ऐसे ही लिख देंगे कंसंट्रेशन के साथ में, मतलब मुझे लगा था कि जब मैं वीडियो देखा तो मुझे लगा था कि हम वो इक्वेशन यूज करेंगे PV = nRT। नहीं 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 नहीं, सो बट क्यों ऐसे किया सो हमने? ऐसा इसलिए है क्योंकि याद करो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, इसमें हमने Kp पढ़ा था, Kc पढ़ा था, है ना। हाँ Kp कैसा था, जहां पर देयर इज at least one gaseous species, ठीक है, and no aqueous species, right? अच्छा, Kc में कैसा था, there is no gaseous species, हम Kc नहीं डिफाइन करते हैं, इनफैक्ट ओके, I should not say in this manner no gaseous species, मेरे को कहना चाहिए इसको मैं टेक्निकली राइट कैसे बोलूं। द थिंग इज कि जब गैशियस और एक्वस स्पीशीज दोनों साथ में होती थी तब इसको डिफाइन नहीं कर सकते थे, ठीक है। व्हेन देयर इज ओनली एक्वस प्लस सॉलिड लिक्विड, और या फिर देयर इज गैस प्लस सॉलिड लिक्विड, ठीक है, या फिर ओनली एक्वस है या फिर ओनली गैस है तो भी चलता था, ये केस हम लोग डिफाइन कर पाते थे, ठीक है। बट अगर एक्वस प्लस गैशियस स्पीशीज आ जाती हैं, ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल CO2 गैस वाटर में डिजोल्व होके CO2 एक्वस बन रहा है, तो इसमें ना तो मैं Kp डिफाइन कर पाऊंगा ना Kc डिफाइन कर पाऊंगा। व्हाट आई यूज्ड टू डिफाइन वाज समथिंग कॉल्ड एज Kpc, व्हिच वाज मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, ठीक है। ये डिजोल्व्ड कंसंट्रेशन, डिजोल्व्ड CO2 का कंसंट्रेशन है, एंड ये जो CO2 ऊपर है लिक्विड सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर जो CO2 गैस है उसका पार्शियल प्रेशर है, ओके ठीक है। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें एक्वस एज वेल एज गैशियस स्पीशीज प्रेजेंट है, तो उसमें हम लोग जो इसका K या Q रहेगा वो ऐसा ही डिफाइन करेंगे where gaseous species की activity will replace by their molar concentration and नहीं sorry, aqueous species की activity will replace by molar concentration and gaseous species की activity will replace by their partial pressure, ठीक है। एंड उसमें एक और जो एडिशनल पॉइंट है वो अभी मैंने आप लोगों को ये बताया, दैट यू मस्ट टेक केयर ऑफ द यूनिट्स आल्सो। आप प्रेशर डाल रहे हो तो बार में ही डालोगे और कंसंट्रेशन डाल रहे हो तो मोल पर लीटर में ही डालोगे। if they are given good enough, if they are not given then do the appropriate conversions. Is this clear with everyone? Yes sir. Okay. Now E0 सेल के अंदर अभी आपको SRP कैथोड माइनस SRP एनोड लिखना है, तो इसमें कैथोड एनोड क्या है दिख ही रहा है आपको, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड हो गया, ये रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड हो गया, ठीक है। तो यू फिगर्ड आउट, इसमें अब आपका E0 सेल क्या हो जाएगा 0.96 माइनस 0.799, ये E0 हो गया। अब बस स्टेप 4 की बात है, where you have to apply the Nernst equation. E is equal to E0 minus 0.059 upon 3 into log Q, है ना। तो ये 0.96 minus 0.799 minus 0.059 by 3 into
लॉग, अब Q का एक्सप्रेशन क्या था, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01, तो इसका क्यूब, एंड देन क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO विच इज 0.2, ठीक है, बार और ATM ऑलमोस्ट बराबर ही है। देन और क्या था नीचे, NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर, एंड H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10 की पावर -1 की पावर 4, ठीक है, ये सब जाएगा, तो फिर आपका E का वैल्यू आएगा, ठीक है। ऑल राइट, देन 43 के बाद 44 हमने देख लिया, 45 पे रुको, मैं आता हूँ 46, आप लोग बताओ, चलो 46 स्टेप 1, कौन बताएगा एनोड का रिएक्शन? सर H2 plus 2 electrons, नहीं, H2 gives 2H plus 2 electron. राइट, कैथोड का Ag plus Ag. electron gives Ag solid. एकदम सही, राइट। अब आप इनको ऐड कर दो, तो इसको बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर ऐड कर देना, तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस aqueous प्लस H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस aqueous प्लस 2Ag सॉलिड, ठीक है। All right, and now based on this, we'll do the calculations. तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा एंड q का वैल्यू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ठीक है, ये आपका स्टेप 2 हो गया, ठीक है। E नॉट क्या रहेगा इसका, कौन बताएगा? इसमें 0.799। कैथोड का 0.799 दिया हुआ है, एनोड का लेकिन दिया हुआ नहीं है ना, लेकिन सर 0 है। राइट, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह अगर है तो इसका तो SRP 0 रहेगा। बस अब स्टेप 4 अप्लाई करना है आपको, ठीक है, तो इससे आपको pH पता पड़ जाएगा, जो भी अननोन है उसकी कैलकुलेशन कर लो अब। ठीक है, 49th क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक 49 भी मैं इसी के साथ कवर कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 49 भी लिखा था। 49th में क्या रहेगा बताओ, n का वैल्यू क्या रहेगा? इक्वेशन आपके सामने है, 6। बिल्कुल सही। Q का एक्सप्रेशन रह जाएगा Al3 प्लस का स्क्वायर अपॉन Fe2 प्लस का क्यूब, तो ये भी आपको पता है, राइट। E नॉट सेल भी आपको पता है, E नॉट सेल विल बी SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, सो कैथोड इसमें आयरन है तो माइनस 0.45 माइनस 1.66, तो इससे आपको E नॉट सेल भी पता पड़ गया। अब आप नर्स इक्वेशन अप्लाई करो और E सेल भी निकाल लो, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना 45th 47th एंड एक और है सी में 58, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है देख के बताओ। सर KSP सर
राइट। तो इसमें इन सब में SRP ऑफ मेटल insoluble salt electrode is equal to SRP of metal soluble salt या metal ion electrode प्लस RT by NF ln KSP वाला फॉर्मूला लगेगा। जो ये ऐसे बार बार वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया है, ठीक है, लेक्चर 2 के अंदर, एंड बोला है कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखो। रिमेंबर दिस। तो बस वही लग रहा है इनमें, जो E0 दिए हुए हैं उनमें एक SRP मेटल इंसॉल्युबल सॉल्ट का है और दूसरा मेटल आयन का है। उनको आपको यूज करना है इधर। समझ में आए वाले क्वेश्चंस? हो जाएंगे खुद से। Yes, sir. All right. Then let me come back to question number 49. अच्छा नहीं, 49 तो कर लिया ना। 50 भी वही चीज है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, जस्ट दैट मे बी शायद कॉम्प्रिहेंड करने में इतना इजी नहीं है। See, they are asking about the potential of Zn2+, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे चेंज होगा, how it changes with zinc 2+ का concentration. This is the premise of Nernst equation. Okay, this is the premise of Nernst equation ना, that cell का potential अंडर स्टैंडर्ड स्टेट तो ठीक है, वो टैबुलेटेड है, बट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में इट वुड डिपेंड अपॉन द concentrations of different species that are present. So let us just then write how it depends on Zn2+ का concentration and then check how it will change. So E of Zn2+ will be equal to E0 of Zn2+ plus 0.059 upon 2 into log 1 upon Zn2+. नहीं, not 1 upon Zn2+, my bad, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, तो ये Zn2+ होगा। ये समझ में आया? मतलब 2 कैसे आया और Q कैसे आया? Is this clear? And ये माइनस साइन होगा। अब क्लियर है? Yes, sir. तो बस अब यहाँ पर आप नोटिस करो, इसको बोल देते हैं E1 is equal to E0 minus 0.059 upon 2 into, से जब C कॉन्सेंट्रेशन थी तब इतना है, फिर बोल दिया 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन C by 10 हो जाएगा, तो उससे EMF और सेल पोटेंशियल E2 हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो E2 माइनस E1 करेंगे, स्टैंडर्ड तो कट जाएगा, ठीक है, और ये 0.059 by 2 माइनस साइन अंदर log 1/10, तो ये log माइनस साइन अंदर लेके log 10 1 लिख देंगे तो रफली ये आ जाएगा प्लस 0.03, ठीक है। तो प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एंड मैग्नीट्यूड इज 0.03, इतने वोल्ट से इंक्रीज कर जाएगा। ये समझ में आया? सर 47 वाला भी एक बार। 47 में यही तो है राजा, अभी बताया ना, इसमें जो थर्ड इक्वेशन है वो काम ही नहीं आता। जो पहला इक्वेशन है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज दिस SRP ऑफ मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है।
एंड जो दूसरा इक्वेशन है वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड का एसआरपी है, तो ये वाला पार्ट है। तो इससे अब आपको AgBr का KSP मिल जाएगा ना। सर ऐसे क्वेश्चंस Okay, में ना okay. कैलकुलेशन बहुत ही गंदी होती है, मतलब उसमें ही स्ट्रगल है, क्वेश्चन करने में स्ट्रगल नहीं है बट कैलकुलेशन करने में। हाँ वो थोड़ा सा है, अभी इन क्वेश्चंस में आपको रहेगा, बट एग्जाम्स में डेटा अच्छा ही मिलता है, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। एग्जाम्स में डेटा आपको अच्छा आ जाएगा। यहाँ पे हैं ऐसे क्वेश्चंस। सर वो RT/NF लॉन KSP में वो लॉन है कि लॉग होता है? लॉन होता है क्या? हाँ लॉन होता है, या फिर 0.059 अपॉन n log KSP, ठीक है, बट ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा ऐसा। तो इसमें वो R का वैल्यू, T का वैल्यू, F का वैल्यू और लॉन लॉग का कन्वर्जन सबको मिलाकर 0.059 सिंप्लीफिकेशन आ जाता है। सर 45th क्वेश्चन में सेकंड का जो रिएक्शन है वो मेटल मेटल सॉल्युबल है ना? 45th में हाँ सेकंड वाला मेटल मेटल सॉल्युबल का है और पहला वाला मेटल मेटल इनसॉल्युबल का एसआरपी है। ओके सर। ठीक है, ऑल राइट। नाउ 57 में भी सेम मेथोडोलॉजी फॉलो करनी है। ठीक है, 57 में कर देता हूँ, थोड़ा सा रीड करना है बट ढंग से आपको। इसमें मुझे बताओ एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? What will be the reaction at anode? Sir H2 gives 2H plus 2 electron. H2 gas gives 2H plus 2 electron, ठीक है। अच्छा अभी कैथोड वाला बताओ। कैथोड वाले के लिए मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान रखना, तो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड क्या होती है, उसका रिएक्शन क्या होता है? Ag2Cl2 solid plus 2 electron gives 2 नहीं थोड़ा तेज बोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। Ag2Cl2 solid plus 2 electron gives 2 Ag liquid plus 2 Cl aqueous, Cl minus aqueous. ठीक, राइट। तो इनको आप ऐड कर दोगे तो आपको फुल सेल रिएक्शन मिल जाएगा एंड एज अ रिजल्ट आपको N मिल जाएगा 2 और Q मिल जाएगा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, ये आपको Q मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है कैथोड, तो उसके अंदर एक्वस आयन, cathode is standard state implies aqueous species concentration is 1 molar। ठीक है, H प्लस का concentration आपको निकालना है एंड पार्शियल प्रेशर आपको बोला गया है 1 atm which is almost 1 bar। ठीक है, स्टेप 3 E नॉट क्या रहेगा? कैन एनीवन टेल मी E नॉट क्या रहेंगे? SRP कैथोड, तो क्या लिखूं यहाँ पर? minus 0.28. 1.1 माइनस 0.28, क्या बोला आपने? पूरा बोलो।
सर 0 लेंगे ना हाइड्रोजन। तो ये आपका E नॉट होगा क्या? नहीं सर, इसमें कुछ और भी लिखा है ना कुछ, EMF क्या होता SOP was given, ठीक है, आप नोटिस करो SOP दिया है कैथोड का, तो उसका SRP विल बी प्लस 0.28, ठीक है, ये कैच रहेगा। अब आप स्टेप 4 लगा सकते हो। E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by 2 log Q. Now you can solve for it. समझ में आया? यहाँ से आप पीएच निकाल लोगे, आगे बढ़े। यस सर। 60th क्वेश्चन पे आ जाओ। 60th क्वेश्चन भी ऐसा ही रहेगा। When you look at the reaction NH2 and मतलब सीधे मैं स्टेप 2 पे ही आ रहा हूँ। एंड Q क्या रहेगा? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2, राइट। एंड ये दोनों आपको 1 और 1 दिया हुआ है, तो बस अब आपको सीधे वर्क करना है। आप सीधे नर्स इक्वेशन लिखो, कहाँ इतना मगजमारी करो, ठीक है। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर ये 1 2 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज सीधे सीधे E नॉट प्लस 0.059 इंटू pH माइनस लॉग H प्लस जो होता है वो pH होता है ना, तो आपका यही ग्राफ बन जाएगा। E सेल एंड pH का पॉजिटिव स्लोप रहेगा और इंटरसेप्ट रहेगा। इंटरसेप्ट अभी पॉजिटिव है, तो यहाँ ऊपर की तरफ बनेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये FBO का समझ में आया क्वेश्चन? FBS की तरफ मूव करें। फोर्टी सेवेंथ का आंसर रॉन्ग आ रहा है यार। या तो तुम पहले ना मतलब ऐसे पेटीएम करो, मतलब वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करने के लिए हम बैटिंग करेंगे। अभी ऐसे क्लास नहीं है तो मतलब तुम फायदा ही उठा रहे हो। मैच कर रहा है बाकी लोगों का 47 का, किस केस ने सॉल्व किया हो तो। किसी ने 47 सॉल्व ही नहीं करा है, फिर उसकी कैलकुलेशन बहुत ही खराब है। तो मतलब सॉल्व भी सर नहीं मैंने कर। अभी फिर से सॉल्व किया, जब आपने दिया ना फॉर्मूला तभी भी आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है। कैसे हो यार तुम? मैंने बस 0.059 को 0.06 लिया है, बस ना फर्क है, फिर भी बहुत क्लोज नहीं आ रहा। जो लॉग ना थोड़ा सेंसिटिव होता है। आई वुड नॉट रेकमेंड कि 0.059 को 0.06 करो, बट ऑप्शन वैसे काफी दूर दूर हैं।
आप 0.059 लेके ही करो, डोंट डू दैट। सर 47 में n तो 1 रहेगा ना? हाँ, सो ऐसा 0.071 माइनस 0.8, अरे 0.071 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 0.059, अब 10 रेज टू द पावर ऑफ, आ तो रहा है 4.4 इंटू 10 की पावर माइनस 13, एकदम चकाचक। हाँ सर, अभी वो 0.059 लिखे क्या तो आया? हाँ, क्योंकि लॉग क्या होता है ना, लॉग काफी सेंसिटिव होता है। मतलब अभी आप लोग देख रहे होगे तो कोरोना वायरस का ग्राफ कई जगह लॉगरिथमिक स्केल में बना रहे हैं, क्योंकि पेशेंट ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो सेंसिटिविटी ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मल स्केल पे वो ग्राफ तो ऐसा लग रहा है कि वर्टिकली ऊपर जा रहा है बस, तो वो लॉग के स्केल पे दिखा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ 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 थोड़ा सा फ्लैट हो रहा है। सो लाइक कितने का होना चाहिए कि आप लोग फिर उसको अप्रोक्सीमेट कर सके 0.59 को 0.6 की तरफ? यार मतलब ऐसा है कि अभी ऑब्जेक्टिव में तो देखो इतना दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसकी जगह पर ये भी लेता, ठीक है, ये डिवाइड बाय 0.06 भी कर देता एंड 10 रेज टू द पावर ऑफ, ये आंसर भी लिख देता, तो मेरा आंसर 7.07 इंटू 10 की पावर माइनस 13 आता। ठीक है, अगर मैंने 0.06 लिया होता तो मेरा आंसर आता 7.08 इंटू 10 की पावर माइनस 13। तो क्योंकि अभी वो 10 की पावर माइनस 13 के ही ऑर्डर का है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो फिर भी मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ। बट अब यही चीज मान लो सब्जेक्टिव में होता, ठीक है, एंड लिखा होता डैश इंटू 10 की पावर माइनस 13, तो वो डैश में 4.4 की जगह 7.08 लिख दोगे तो काफी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, सो इंटीजर वाले क्वेश्चंस में देखो अब ऐसा नहीं है कि आपको इतने गंदे कैलकुलेशंस मिलेंगे। इंटीजर वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आपसे डेफिनेटली थोड़ा बेटर डेटा देकर आपसे एक्सपेक्टेशन यही होगी कि हाँ अभी कर पाओगे आप अच्छे से। ठीक है, ऑलराइट, सो एफबीएस की तरफ मूव करें। एफबीओ में डाउट्स हो गए तो ऑलराइट, एफबीएस में क्या डाउट्स हैं आप लोगों के? एफबीएस कैसे स्टार्ट करूं? एंड के क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करूं, ज्यादा डिफिकल्ट वाले जो हैं? यस सर। है ना, क्योंकि टाइम कितना बचा है? आई थिंक आधा घंटा टाइम बचा हुआ है। कितनी बजे से थी क्लास? आई थिंक हाँ आधा घंटा टाइप्स ही बचा हुआ है। मैं एंड के क्वेश्चंस करता हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो। 33 से ओके स्टार्ट सर। करते हैं। राइट, तो 33 में अब आप देखो यहाँ पर कैसा है, प्लैटिनम H2 गैस HClO, इनफैक्ट हाँ HOCl, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ये एक्वस है एंड ये यहाँ पर स्टैंडर्ड कैलोमर इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसके लिए बोला जा रहा है 608 टॉर
एंड इसके लिए बोला जा रहा है दैट कॉन्सेंट्रेशन इज 4.34 into 10 raised to the power of -3 मोलर. ठीक है. एंड नर्स इक्वेशन अगर आप देखोगे तो उसमें E रहेगा, E नॉट रहेगा, -0.059 अपॉन n रहेगा एंड Q रहेगा. ठीक है. अब E आपको दे दिया गया है. ठीक है. E नॉट आपको दे दिया गया है, n भी आपको मिल जाएगा जब आप इक्वेशन लिखोगे. तो इस Q में बेसिकली आप H प्लस निकालोगे और उससे आपको फिर ये जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो मिलेगा. समझ में आया? ये तो मैंने एक बार ऊपर से ओवरव्यू दे दिया. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग जो कि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ स्ट्राइक करता है, थोड़ा मैच्योरिटी आ जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो आप लोग कर पाते हो. लेट अस फॉलो द सिंपल सेम स्टेप्स दैट वी डिड. स्टेप 1. ठीक है. आप लोगों को ये तो समझ में आया ना कि ये वाला साइड का दिस साइड इज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. जो HOCl है उसमें बस वो H प्लस प्रोवाइड कर रहा है, बाकी जो OCl माइनस आयन है दैट इज जस्ट अ स्पेक्टेटर आयन, वो कुछ नहीं कर रहा. तो इट इज अ सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा एनोड का रिएक्शन क्या है, तो आपका आंसर होगा सिंपली H2 गैस इज गिविंग 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. बस इतना ही है. OCl माइनस इज स्पेक्टेटर. ठीक है. OCl माइनस लिखो या ClO माइनस लिखो. अच्छा, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, कौन बताएगा? MS कौन है? अरे गायब ही हो गया. R कौन है? चलो R तुम बता दो. Who is this R? तुम लोगों को दिख रहा है ये पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट स्क्रीन के ऊपर? नहीं सर, लेकिन खोल लिया बाजू में. हाँ स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, लेकिन हम लोग ने खोल लिया. अच्छा, ये R कौन है यार? ऐसे चुपचाप क्यों है? भगाऊंगा नहीं यार. AC भी है हमारे बीच में. तुम लोगों ने यार नाम अलग अलग लिखने बंद कर दिए. मतलब पहले तो मियाँ खलीफा और पता नहीं कौन कौन आ रही थी केमिस्ट्री पढ़ने के लिए. कुछ तो डांट वाट उस लगाई दिन क्या किसी AM ने? सर ने बहुत ज्यादा चिल्लाया था बाकी सब पे. AM सर ने? उनने निकाल दिया था उन लोग को ये लेक्चर से. हाँ ये अच्छा यार, मुझसे इतना डांटा ही नहीं जाता यार. समां मतलब मैं बीच में हंस देता हूँ. मेरा डांटना इतना इफेक्टिव हो नहीं पाता. बट हाँ, आई शुड ऑल्सो डू दिस. ये उन्मनी ने अपना नाम उन्मनी रखा हुआ है पूरा. कैसा है? तुम्हारा नाम उलाला था, वही लिखा करो तुम. एनीवेज
कैथोड का बताओ भाई रिएक्शन, कोई तो बताओ क्या कर रहे हो। So Hg2Cl2 plus 2 electrons will form पहले Hg भी तुमने and बताया था ना, है संजय? yes sir. पहले भी तुमने ही बताया था ना। No. अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था। No, that wasn't me. चलो With ठीक me, है, sir. गुड। तो यहाँ से अब आप देखोगे तो n का वैल्यू 2 आ जाएगा और q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। ठीक है, अब डेटा ध्यान से पुट करना, ये स्टैंडर्ड है। तो क्लोरीन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको निकालना है, दैट इज योर अननोन, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड एज 608 अपॉन 760। ठीक है, और में मत छोड़ देना। अब ई नॉट सेल के ऊपर आप फोकस करोगे तो ई नॉट सेल हो जाएगा SRP कैथोड 0.24 माइनस 0. और नथिंग एक्चुअली, एनोड का तो 0 रहेगा। तो अब आप ई सेल का फॉर्मूला लिख दो। ई सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन 608 बाय 760। एंड ये ई सेल भी आपको दिया हुआ है 0.532 और ये ई नॉट सेल आपने निकाल ही लिया है, तो इससे आप H प्लस निकाल लोगे एंड दैट H प्लस विल बी इक्वल टू रूट के इंटू सी। अब सी आपको दिया हुआ है 4.34 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू द वैल्यू दैट विल गेट, एंड यहाँ से k आ जाएगा। अच्छा, मान लो कि मुझे और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाना है, तो ये सब करने के बाद भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्यों? So the assumption Ka should be greater than 10 to the power minus 6. हाँ, दो अप्रोक्सीमेशन रहेंगे कि एक तो इग्नोर वाटर वाला, ठीक है, मोस्ट लाइकली तो वर्क कर जाएगा। दूसरा अप्रोक्सीमेशन इस जहां पर चोट हो सकती है, यहाँ पर रूट के सी तभी लिखा जा सकता है व्हेन अल्फा इज मच लेस देन 1। तो अगर वो नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना चाहिए था, राइट? तो अगर कोई नंबर देना ही नहीं चाहता है तो क्या कर सकते हैं? सर तो ऐसे में हमें पहले अल्फा निकालना चाहिए, उसके बाद के। हाँ, बात तुम्हारी एकदम सही है, पर हमें एक ही सवाल थोड़ा करना है पूरे पेपर में। दैट इज वेयर वी गेट स्टक। ठीक है, 32nd क्वेश्चन पे आ जाए। ओके, 32nd क्वेश्चन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, चलो बताओ। स्टेप 1, यहाँ पे बताओ एनोड का रिएक्शन क्या होगा। दिस इज समथिंग डिफरेंट, इसके जैसा अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं था। दिस इज नॉट वन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स दैट यू हैव स्टडीड। This is you can say similar to metal insoluble salt, but instead of insoluble salt you have metal complex ion salt. ठीक है, यहाँ पर है ये metal कॉम्प्लेक्स आयन सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे जिंक मेटल है और ये ZnCN4 2 माइनस आयन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है, इसका रिएक्शन नोटिस करना, इट इज समथिंग ऑफ दिस नेचर, Zn सॉलिड प्लस 4Cn माइनस। 4Cn माइनस क्यों लिखा? क्योंकि सबस्क्रिप्ट में 4 Cn है जो ये बनेगा अभी उसका।
is going to form ZnCN4 2 minus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक 0 से +2 में जा रहा है. ये एनोड पर रिएक्शन हो रहा है. कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है? कैथोड इज अ सिंपल मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. ये हमारा ओल्ड स्कूल ही है, मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड. तो इसमें कैसा रहेगा? Zn2 plus aqueous plus 2 electron is giving Zn salt. ठीक है. अब आप जब इनको ऐड करोगे तो आपको रियलाइज होगा n का वैल्यू 2 है एंड q का वैल्यू है, क्या रहेगा q का वैल्यू? ZnCN4 2 minus into, इनफैक्ट into नहीं रहेगा, अपॉन ही रहेगा. अपॉन क्या क्या रहेगा? Cn माइनस की पावर 4 एंड Zn2 प्लस की पावर 1. ठीक है, ये आपका Q रहेगा. समझ में आया ये बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस? ये आपको दिया हुआ है डेटा. दिस इज 0.45, दिस इज 2.65 into 10 की पावर -3 raised to the power of 4 and this is 3.84 into 10 raised to the power of -4. अब E0 सेल के ऊपर आप फोकस कर सकते हो. तो अच्छा, E0 सेल आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, E0 सेल आपको निकालना पड़ेगा और E सेल आपको दिया हुआ है. ठीक है, E सेल इज गिवन टू है 0.099 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे आप फुल सेल रिएक्शन भी लिख लो. एक्चुअली फुल सेल रिएक्शन कैसी रहेगी? इफ आई आस्क यू टू राइट द फुल सेल रिएक्शन, तो ये रहेगा Zn2 plus aqueous plus 4 Cn minus aqueous is giving ZnCN4 2 minus aqueous. ठीक है, एक्चुअली आपसे क्वेश्चन में नोटिस करना कि इसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है. ठीक है, तो अगर आप E0 निकाल लोगे इस रिएक्शन का तो आपको उससे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा. जो पूछा जा रहा है ना, कैलकुलेट द KF, दैट KF स्टैंड्स फॉर K फॉर्मेशन. ठीक है, K सबस्क्रिप्ट F. ये आपने इनफैक्ट आयन में पढ़ा भी था कि कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन का इक्वेशन है ये. ठीक है, तो अब आप बेसिकली नर्स इक्वेशन यूज करके E0 निकाल लो एंड दैट E0 विल बी इक्वल टू RT by NF ln K, or you can say 0.059 upon 2 into log K. ठीक है, ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये अननोन था, इसको उठा के यहाँ पे डाल दो. सॉल्व कर लोगे? Yes. ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब बाकी लोग का धीरे धीरे सैचुरेशन हो रहा है. पक्का समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये. इट्स नॉट एन इजी क्वेश्चन. ओके, देन 31st क्वेश्चन पर आप आओगे तो 31st क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, 31st में भी
थोड़ी सी मेहनत है। सो 31st में भी आप एक एक करके रीड करना और वही रिएक्शन का मैनिपुलेशन होगा। आपको शायद ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट लिखना के इक्वेशन चाहिए। तो पहला जो डेटा दिया हुआ है ना, द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ 6Cn माइनस प्लस कोबाल्ट 2 प्लस, तो उसको कैसे लिखोगे? ये कोबाल्ट 2 प्लस प्लस 6Cn माइनस is giving cobalt Cn6 4 माइनस। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड इसका आपको KF दे दिया है। ठीक है, इसका आपको KF मिल गया है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन देखना, दूसरा इक्वेशन कैसा है? अच्छा, इस KF को आप कैसे लिख सकते हो? चलो ठीक है, अभी तो बाद में देखेंगे कैसे लिखना, अभी KF मिल गया है। अच्छा, दूसरा इक्वेशन है, आपको SRP दिया हुआ है इस इक्वेशन का, COCN6 4 minus aqueous plus electron is giving COCN6 3 minus aqueous। ठीक है, ये भी आपका नोटिस करना, प्लस माय बैड, ये 3 माइनस, वही मैं सोचूं 3 माइनस से एक्चुअली ये 4 माइनस में जा रहा है। ये कोबाल्ट +3 से +2 में जाता है। इस इक्वेशन का आपको E0 गिवन है ना? ऑल राइट, देन थर्ड इक्वेशन आपको बोला जा रहा है कैलकुलेट फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ COCN6 माइनस। तो जैसे COCN6 4 माइनस का आपने लिखा था, वैसे ही 3 माइनस का कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मेशन का कांस्टेंट? इट विल बी कोबाल्ट 3 प्लस एक्वस प्लस 6Cn माइनस एक्वस। ये समझ में आया? इसका KF आपसे पूछा जा रहा है। This is something that is being asked. And fourth data point है cobalt 3 plus aqueous plus electron is giving cobalt 2 plus aqueous, right? This is something, ये यहाँ पर cobalt 3 plus क्यों आया है समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर cobalt +3 स्टेट में है। ठीक है, ये COCN6 है 3 माइनस, यहाँ पे कोबाल्ट 3 प्लस स्टेट में, इसलिए यहाँ पर ये कोबाल्ट 3 प्लस लिखा मैंने। ये समझ में आया कि नहीं आया? थर्ड इक्वेशन। यस सर। एंड ये फोर्थ इक्वेशन का भी E0 आपको दिया हुआ है। अब एक बताओ, इसका मैनिपुलेशन 1 2 3 4 के बीच में क्या रिलेशनशिप है? देख के बताओ। So 1 is equal to 3 minus 4. हाँ बोलो। This third equation is coming as fourth equation plus the first equation minus the second equation. वैभव ने मुझे बोला है, वैभव इतना स्टाइलिश स्पेलिंग क्यों लिखा हुआ है तुमने अपना? या यही तुम्हारा स्पेलिंग है? हाँ सर, यही स्पेलिंग है क्या? फैंसी हो यार तुम एकदम। पता नहीं था, मेरी नजर तुम पे पहले पड़ी नहीं। तुम्हारी शक्ल दिखाओ एक बार, तुम हो कौन? इतना यूनिक नाम
और हमें अभी तक दिखाया नहीं गया। ओ क्या बात है, तुम हो वाइब हो। नहीं ठीक है, मतलब गुड गुड। ऑल राइट, सो या ये मैनिपुलेशन समझ में आया आपको? तो आप डेल्टा G03 इज इक्वल टू डेल्टा G04 प्लस डेल्टा G01 माइनस डेल्टा G02। अब थर्ड वाले के लिए लिखो माइनस RT ln KF, फोर्थ वाले के लिखो माइनस NF E04, फर्स्ट वाले के लिए माइनस RT ln KF, ठीक है, इसको KF डैश बोल दो, एंड फोर्थ वाले के लिए लिखो माइनस NF E02, ठीक है, क्योंकि जैसा जैसा डेटा दिया हुआ है वैसा वैसा हम लोग डेल्टा G का सब्स्टिट्यूशन करना चाह रहे हैं, डेल्टा G0 का इनफैक्ट। तो अब जो जो दिया हुआ है उसको लिख लो और जो अननोन है वो सॉल्व कर लो। ये समझ में आया? ये इम्पोर्टेंट कनेक्शन है डेल्टा G0 K और E0 के बीच का। तो सिलेक्टिवली जैसा डेटा दिया है वैसा चूज करके इक्वेशन में डालते जाओ। हाँ यार, बात तो सही है, चार्जिंग पे लगा दिया जाए। क्यों बताओ? नेक्स्ट 31 समझ में आया? तो 30th पे आ जाते हैं। 30th में कैसे सॉल्व करोगे? 30th is also a little tricky this way. 30th में आप नोटिस करना, चलो मुझे रिएक्शन लिख के बताओ, एनोड का रिएक्शन बताओ क्या होगा सबसे पहले। कौन बताएगा? वैभव तुम बताओ। So anode will be Mn2 plus 2 is gives anode will be Mn. No, wait, it's ulta. Okay. Sir, anode would be manganese solid would give manganese hydroxide plus 2 electrons plus OH minus. Mn solid plus 2 OH minus, ऑक्सीडेशन होना है ना यहाँ पे। OH minus aqueous is going to give you MnOH whole twice solid plus 2 electron, ठीक है, ऑक्सीडेशन होना है, समझ में आया? कैथोड पर तो सिंपल रिडक्शन हो जाएगा, Cu2 plus aqueous plus 2 electron is giving Cu solid. Right? अब इसके बेसिस पर आप लोग आगे बढ़ सकते हो। n का वैल्यू 2 रहेगा एंड q का वैल्यू क्या रहेगा? 1 अपॉन Cu2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का
स्क्वायर, है ना। ये सब डेटा दिया हुआ है आपको। ये आपको दे दिया है 0.19 मोलर और ये दे दिया है 10⁻⁻4 मोलर। ठीक है, तो आपके पास N भी आ गया, Q भी आ गया। अच्छा, इसमें E0 सेल के लिए थोड़ा सा आपको घुमाया फिराया जाएगा। इसमें SRP कैथोड माइनस SRP एनोड है। ठीक है, SRP एनोड का तो डेटा आपको सीधे सीधे मिल जाएगा 0.34। ठीक है, बट SRP कैथोड के लिए इनडायरेक्ट डेटा है। ठीक है, इसमें नोटिस करना आपका E0 जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड है, दैट विल बी E0 मेटल सॉल्युबल प्लस RT बाय NF ln KSP। तो आपको ये दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप ये वाला कैथोड का E0 निकालोगे और सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको E0 सेल मिलेगा। ठीक है, ये मेहनत करने के बाद में नाउ यू अप्लाई द नर्स्ट इक्वेशन। इज दिस क्लियर? अब आपका हो जाएगा ये। यस सर। ठीक है, तो फिर आज यहीं पे पॉज लेते हैं, थोड़ा ब्रेक लो, मैं भी थोड़ा ब्रेक लूंगा। एंड बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस जो नेक्स्ट टारगेट है वो मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है, वैसे तो मैंने वो जो गूगल स्प्रेडशीट है, गूगल डाउट शीट जो है अपनी, उस पर डाल दिया था, बट मैं वापस से ग्रुप पे एक बार भेज दूंगा फॉर एवरीवन एल्स, बिकॉज not all the students are currently present in the session. ठीक है, तो क्लोज करें अभी का सेशन अपना। ओके सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। चलो, all right guys, thank you so much. थैंक यू सर। यू सर। Thank you, sir.